श्री साईनाथाय नमः। 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 ओम साई राम। Up to last session, we have seen in chapter 10 that soul is omnipresent, omnipotent, wakeful, dream state and deep dream state and deep sleep state. And in extension of this state is the birth and death cycle. Life, sentiment is the soul. Its presence is unbreakable. Soul is permanent and full of knowledge. It is inseparable from Parabrahma and has no desire to enjoy or no desire to work, rather no desire to live also. Parabrahma has nothing to do with the life and death cycle. Soul is described as the permanent, present, knowledgeable, free from everything, etc. Now, in everybody, every soul is tagged with I-ness. Every being had a feeling of I-ness, and presence of this I-ness is the soul. मैं कौन हूँ? Who am I? This I. So the aim of life is to search for this I. Okay. Its awareness is I is called Bhakta. Bhakta and lovable. One never dislike him. So it is lovable. The life in the body is not aware of this soul. Now the thing is, we are living, we have got Chaitanya there. The Chaitanya is because of that soul, this connectivity is lost. You got it? We are breathing. We are living our life. We are suffering from all karmas and enjoying our good deeds. But this Chaitanya, this liveness and that soul, that connectivity is called Adhyatma. And we all, whatever the faculty you are, whether you are from Sai Baba faculty or Akkalkot Swami Maharaj faculty or from Periyar faculty, everywhere, anywhere, what we are doing is we are trying to find establish this connectivity with the soul. This life is in the body is not aware of the soul. As such, the person desiring to get liberated try to understand the spatial knowledge, and this spatial knowledge is called Adhyatma Shastra. Adhyatmana. अपने आप की पहचानत
कर लेना, यानी टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ. And we are all in this process of understanding ourselves first, this I-ness, this I, that we are understanding first. Let us start with the 35th stanza of Sai Satcharit, chapter 10. खरेच जे अपार अनंत भरले आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, ऐसे जे निरंतर अभिन्न अत्यंत मूर्तिमंत ते बाबा. Now, how is this Brahmand? Brahmand means, what is the Brahma? Brahma is Parmeshwar, Sanjivan, liveliness, Chaitanya, Jeev, जो movable है, and Stambha is Jada Jeev, immovable. They also had got fortune, but they are Jada, they are Achaitanya, Achar. They cannot move anywhere, like stone, etc. स्थावर प्रॉपर्टी. सो ब्रह्म आणि स्तंभ, हा ब्रह्म स्तंभ पर्यंत, यानी जिस कैसे है ये, कैसा है ये, अपार अनंत, जिसको कोई बाउंड्रीज नहीं है, अनादि अनंत काल से चलते आ रहा है. अभी आगे एक स्टैंजा के बाद आपको उसका वो ये काउंटिंग मिलेगा, कितना बड़ा है वो, अनादि अनंत है. ये चराचर में, चर अचर में, मूवेबल इमूवेबल में, ये जो प्रकृति है, प्रकृति चर और अचर से बनी हुई है. ये चैतन्य में, यानी ये प्राणी जगत में, वैसे ही जड़ अचर में ये ब्रह्म भरा हुआ है, ये चैतन्य भरा हुआ है. ऐसा है ये, क्या है, निरंतर शाश्वत अभिन्न प्रकृति के स्वरूप में. ये जो प्रकृति जो व्यक्त हो गई है, प्रकृति के स्वरूप में, ये साक्षात पर ब्रह्म यानी साई भगवंत. साई भगवंत ये भरे हुए हैं, ये है हर एक चीज में. जिस दिन प्रकृति के हर घटक में, हर एलिमेंट में आपको साई पर ब्रह्म नजर आएंगे, उस दिन आपको ब्रह्म ज्ञान मिल गया. The one which has no beginning or end, nothing to cross, is engrossed in all animate and inanimate things, which is continuous, permanent, and one with the Parabrahma is Sai Bhagavan. Kali Yuga. Now, please take the note. I'm going to go into very minute detail. Kali Yuga Kala Prasar 4,32,000, भरता स्थूलमाने 5,000, झाला अवतार बाबांचा. यानी कलयुग की काल मर्यादा जो होती है वो 4,32,000 ईयर होती है, ह्यूमन ईयर. गॉड परब्रह्म की ईयर अलग है, हमारी अलग है, वो बताता हूं आपको. ये ह्यूमन ईयर जो हम गिनते हैं, राइट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, या इस कलयुग में, ये जो अभी कलयुग चालू है, अंदाजे 5,000 साल अभी ओवर हो गए हैं. अभी कौन सा मनवंतर चालू है, कौन सा युग चालू है, वो सब आएगा, देख लीजिए. अभी विश्व की निर्मिति जो है ना, विश्व की निर्मिति की एक काल गणना है, कितना इसका आयु है, और ये काल गणना कैसी है, वो अपन देखते हैं. यानी भगवान के एक श्वास से, भगवान तो सोए हुए हैं, किधर है वो, पानी के सतह पर शेषनाग भगवान के, उन्होंने उनका बिछायत बनाई हुई है, लक्ष्मी माता जी पैर दबा रही है, और ये वहां सोए हुए हैं. और इनका जो श्वास है, एक श्वास से एक ब्रह्म की निर्मिति होती है, एक ब्रह्मांड की निर्मिति होती है, एक विश्व की निर्मिति होती है. और उनके एक उच्छ्वास से
इनटेक से एक विश्व की समाप्ति होती है। लेकिन ये श्वास हम जो अभी बता रहे हैं उसका लेंथ कितनी है वो देख लीजिए। जब एक ब्रह्मांड की निर्मित होती है, एक विश्व की निर्मित होती है, तब बाय डिफॉल्ट वो विश्व की निर्मित करने के लिए, उसका संचालन करने के लिए और उसका विनाश करने के लिए 3 देवता बाय डिफॉल्ट वहां अपॉइंट हो जाती है। और वो जो देव है वो है ब्रह्मा, विष्णु और महेश। परमानेंटली ये 3 वर्ड, जब तक ये वो ब्रह्मा ये रहेगा, विश्व रहेगा, तब तक इनको काम करना है। अब श्रीमद् भागवत पुराण के अनुसार ब्रह्मदेव की आयु जो होती है, पहले ब्रह्मा आते हैं, ये जो 3 जो आते हैं पहले ब्रह्मा आते हैं विश्व की निर्मित करने के लिए। तो ब्रह्मदेव की आयु होती है 100 ईयर, नॉट आवर्स, भगवान के। यानी ब्रह्मदेव का एक दिन यानी एक कल्प होता है। सुनिए, अभी बहुत मजा है। ब्रह्मदेव के आयु कितनी है? 100 साल की। ये 100 साल के नॉर्मल यूज जैसे 360 इंटू 100 ईयर्स यानी 36,000 डेज हो गए, 100 ऑन एन एवरेज। ओके, इसमें एक दिन यानी एक कल्प, ये एक कल्प में 14 मनवंतर होते हैं, यानी 14 मनु आते हैं इसमें। भगवान की आयु, भगवान ये ब्रह्मा विश्व की आयु 100 ईयर, 100 ईयर में एक दिन यानी एक कल्प, एक कल्प में 14 मनवंतर और एक मनवंतर में 71 महायुग होते हैं। महायुग यानी 4 युगों का एक युग। 4 युग कौन से हैं? क्रूत यानी सत्य भी बोलते हैं उसको, क्रूत, त्रेता, द्वापर और कली। इस 4 युग का एक महायुग होता है। ऐसे 71 युग यानी एक मनवंतर होता है। ऐसे 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। एक कल्प का मतलब भगवान का, ब्रह्मदेव का एक दिन। अब ये 4 युगों की आयु कितनी है? 4 युग में जो युग है क्रूत युग की, यानी इसकी आयु हुई 17,28,000 ह्यूमन ईयर, 17,28,000 ह्यूमन ईयर। त्रेता उससे कम होती है, त्रेता 12,96,000 ईयर। द्वापर युग 8,64,000 ईयर, और हर एक में 4,32,000 कम होते जाते हैं। और कली युग 4,32,000 ह्यूमन ईयर। यानी एक महायुग बनता है ह्यूमन ईयर में गिना जाए। अभी ह्यूमन ईयर एक परिणाम लेते हैं क्योंकि वो अपने को मालूम है। उसमें होता है 43,20,000 ह्यूमन ईयर, यानी एक महायुग। कितना? 43,20,000 ह्यूमन ईयर यानी एक महायुग। ऐसे कितने युग? 70 युग, 71 युग। 71 युग का होता है 30, मैं सिर्फ गिनते जाता हूं, कितना युग कितना लाख बोल रहा है वो भी देख लीजिए आप। 30, 67, 20,000 यानी 30 करोड़ 67 लाख 20,000 मानव वर्ष यानी ह्यूमन ईयर। ये हो गया 71 युग, इसका एक कल्प हो गया। अभी नहीं, एक कल्प नहीं, एक मनवंतर हो गया। मनवंतर का मतलब मनु का राज। ऐसे 14 मनवंतर आते हैं। 14 मनवंतर हो गया, एंड प्लस उसकी संधि जो है, ये मनवंतर को एक मनवंतर आता है तो उसके एक संधि के कुछ साल होते हैं। तो ब्रह्मदेव का एक दिन यानी एक कल्प संधि वर्ष अगर पकड़े तो उसका होता है 43 करोड़, नो सॉरी, 432 करोड़ 4 अब्ज 32 करोड़ ईयर, ऐसे 100 वर्ष। अभी एक हो गया एक दिन,
एक दिन। ऐसे 100 वर्ष, 100 वर्ष है ने 100 इंटू 365 पकड़ो, 360 पकड़ो, ऐसे 36,000 यानी 36,500 पकड़ो तो भी अभी मैं गिनता हूं 15768 कितना 15768 उसके ऊपर 3 to 5 उसके ऊपर 10 जीरोस लगाइए 15768 ऊपर 10 जीरो गिनते बैठिए भाई। इसका शास्त्र के अनुसार 1576 खरब 80 अब्ज मानव वर्ष एक कल्प, एक नहीं ये हो गया विश्व का आयुष्य, पूरा विश्व इतना साल रहता है। अब हम कहाँ हैं हम देखते हैं। पहले तो मैं 14 मनु के नाम बताता हूं आपको। पहला मनु है स्वयंभव, ये ब्रह्मदेव का पुत्र है, ब्रह्मदेव का पुत्र है स्वयं। दूसरा है स्वारेचीश, ये अग्नि देवते का पुत्र है, अग्नि देवता। तीसरा है उत्तम यानी अउत्तम बोलते हैं उसको, ये प्रियव्रत राजा का पुत्र है। तामस यानी ऊपर जो लिखा भी उत्तम उसका ये भाई है तामस। पांचवा है रैवत, ये तामस का बंधु है। चाक्षुष ये भी तामस का बंधु है, तामस मनु का, यानी 6 मनवंतर हो गए। अभी जो चालू है मनवंतर उसका नाम है वैवस्वत मनवंतर। वैवस्वत ये सूर्य देव का पुत्र है। और आगे आने वाले हैं सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, रुद्र सावर्णी, धर्म सावर्णी, देव सावर्णी और इंद्र सावर्णी, और 7 युग आने वाले। ये सब ब्रह्मांड का ये खत्म होने के लिए 7 मनवंतर आने वाले हैं। वो 7 मनवंतर यानी 71 वो सब लिख लीजिए आप। अभी जो चालू है वो है वैवस्वत मनवंतर, उसके 27 महायुग खत्म हो गए हैं। 27 महायुग उसके खत्म हो गए। 28वां महायुग चालू है और उसका लगभग 5000 साल उसके खत्म हो गए। अभी कितने बाकी है? और 4,32,000 कलयुग है, उसमें से 5000 गए हैं, यानी लगभग 4,28,000 मानव वर्ष ये कलयुग के ही वाले बैलेंस है। और ये है 7वां युग, 7वां मनवंतर। 28वां महायुग है। और कितने महायुग है? 71 खत्म होने का एक मनवंतर का, गिनते बैठिए। Does anybody have any doubt on this? Refer to the video afterwards. एते श्रोता अशंका घेती, ठावी नसता जन्मस्थिति. Kaliyug is having period of 4,32,000 years. Baba is born after about 5,000 years of starting Kaliyug. Okay. इथे श्रोता आशंका घेती, ठावी नसता जन्मस्थिती, काय आधारे केले ही निश्चिती, सादर चित्ती परिस्थिती. Now, Hemad Pant have tried to calculate Baba's age, nearby or exact तो कोई नहीं जानता है. सो श्रोताओं को सहज भाव से शंका आना स्वाभाविक है कि उनकी जन्मस्थिति मालूम नहीं, जन्म परिस्थिति मालूम नहीं. इस अगर ये ऐसा होते हुए कौन से आधार पर आप उनकी आयु निश्चित कर रहे हो? तो वो जो कौन से रिवर्स कैलकुलेशंस हेमंत पंत जी ने किए हैं वो अभी बता रहे हैं. The listeners may have doubt as how this age of Baba was calculated, since his birth date is not known. Listen carefully. निर्वाण कृत संकल्पेसी, ओवनी शिर्डी क्षेत्र निवासी, कंठिले 60 संवत्सरासी, क्षेत्र संन्यासी वृत्तीने. क्षेत्र संन्यासी आणि एखादे तीर्थ क्षेत्र पर कायम हमेशा रहने का संकल्प करना. बाबा ने वहां संकल्प किया और वहां 60 संवत्सर यानी 1 संवत्सर यानी 1 ईयर, तो 60 ईयर्स तक वहां रहे. ये
उनका काल है। 60 साल तक बाबा वहां रहे हैं शिरडी में। Baba decided to stay in Shirdi and stayed for 60 years in as ascetic. 16 वर्षाची या वयास आरंभी बाबा प्रकटले शिर्डीस, 3 वर्षे ते समयास करुणिवास होते ते। अब बाबा फर्स्ट शिरडी में प्रकट हुए 16 साल की उम्र में, यानी ये 60 साल वहां रहे, 16 साल ऐड कर दीजिए। वो जब वो 16 साल की उम्र में आए थे तब उनका मुकाम वहां 3 साल था, 4 साल निकल गए थे। मग तेथून मग जे कोठे सटकले, दूर निजाम शाही आढळले, ते मग वराळा समेत आले, शिर्डीत राहिले अक्षयी. Then he entered Shirdi at the age of 16 years. He stayed for 3 years at Shirdi. Then he disappeared from Shirdi and was found in the area ruled by Nizam, part of Karnataka, Andhra and Maharashtra. Now, exactly, that was the boundaries of the Nizam state. He returned with the marriage party of Chand Bhai's wife's brother. Then he stayed at Shirdi permanently. निजाम शाही यानी पहले का जो हैदराबाद स्टेट था, जहां निजाम उसका जो था, उसमें मराठवाड़ा के 8 डिस्ट्रिक्ट्स, आंध्र प्रदेश का कुछ भाग और कर्नाटक राज्य का कुछ भाग, ऐसा मिलके वो राज्य था। बाबा वहां से गए, वो निजाम राज्य में गए, वहां निजाम शाही में पहुंचे, क्योंकि उस वक्त तो ये नहीं था ना, वो दैट वाज निजाम शाही। देन बाबा चांद पाटिल के औरत के भतीजे के जो शादी की बारात थी, वो बारात के साथ शिरडी में आ गए। ये है स्थूल मानव में उनका प्रवास। 20 वर्षे होती वयास, तेथून अखंड शिर्डी सहवास, तेथेच 60 वर्षे वास, सर्व त्रास ही ठावे। बाबा जब शादी के वो जो मैरिज प्रोसेशन के साथ आए तब उनकी उम्र 20 साल की थी, और वहां से 60 साल तक बाबा यहाँ रहे, ये सबको मालूम है। अब बाबा जब गए, वो कब गए? When he returned with marriage party, he was of 20 years. Since then, he stayed at Shirdi for 60 years. Everybody knows this. Now, I little bit disagree with all these things because all the parallel literature, they have got different counting. शके 1840 अश्विन शुद्ध दशमीश, विजयादशमीचे सुमुहूर्तास बाबा निजवास पावले. Baba left his body, उसका देह, on शके 1840 दशमी दशहरा विजयादशमी के शुभ मुहूर्त पर बाबा गए. Now, if you are calculating shak into sun, just you have to add 78 years, 78 figure in that. So 1840 into 78 is 1980. So according to solar calendar, 1980. ऐसा कैलकुलेट उन्होंने किया है. 1849th day of Shaka, another local calendar, on Dasera day he left his earthly body. एवं 80चा आयुर्दाय स्थूलमानाचा हा निश्चय की शके 1760 होय जन्म निर्णय बाबांचा. अगर साईं बाबा ने जन्म लिया होगा, किसी माँ के कोख में अगर वो पैदा होगे तो इस कैलकुलेशन के अनुसार बाबा की जन्म जो तिथि है वो अंदाजा शके 1760 में होनी चाहिए, यानी 1838 होनी चाहिए उनकी.
ये कैलकुलेशन के हिसाब से कि 1760 होय जन्मदिन जन्म निर्णय बाबाचा, इस कैलकुलेशन के सर, इस अर्थमेटिक के अनुसार बाबा को अगर उसकी उत्सुल मान में यानी मूलतः 80 साल की उम्र अगर पकड़ी जाए और रिवर्स कैलकुलेशन किए उनके देह त्याग के से, तो बाबा का जन्म सन 1838 में आता है, शके 1760 में। As per this calculation, he was of 80 years when he left his body. Accordingly, he must have born in Sheke 1760 years. काळाच्या माथा देणार पाय, ऐसिया महात्म्याचा आयुर्दाय, गर्वेल करी निश्चित काय, अवघड हे कार्य साधाया. नाउ जस्ट एज ए ह्यूमन कैलकुलेशन जिधर जाता है वहां तक तो कैलकुलेशन किया, लेकिन आगे उन्होंने भी कन्फेस किया है। हेमाडपंत जी ने क्या बोलते हैं कि काल के माथे पर पैर देकर, काल जिसके पूरे जो अंकित है, यानी कम से भी काल में कभी भी वो शरीर धारण कर सकते हैं, शरीर छोड़ सकते हैं, ऐसे जन्म मृत्यु के साइकिल पर जिनका विजय प्राप्त जिन्होंने हासिल किया हुआ है, ऐसे संत महात्माओं का आयुर्मान निश्चित स्वरूप से जानना या कहना बहुत मुश्किल काम है, नहीं होगा, क्योंकि बाबा कालातीत है। आज भी खड़े रहते हैं, आज भी खड़े रहते हैं, आज भी प्रकट होते हैं। जब चाहिए वो अपना शरीर त्याग देते हैं, जब चाहिए शरीर ले लेते हैं। जिनकी काल के ऊपर सत्ता चलती है उनके आयुर्मान गिनती हो सकती है क्या? आयुर्मान की, उनकी उम्र की गिनती कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। It is difficult to know lifespan of saints who have conquered the time. Rather, time is under their control, and they have overcome birth and death cycle. So, no question of their counting of real human year life. महात्मे नित्य स्वस्थानी स्थित, जन्म आणि मरण विहित, दीन मनीस कैसा उदयास्त, तो तवा चल स्वस्थ सदा. दीन मनी यानी सूरज, सन. सूरज को कभी उदय और अस्त, सनराइज एंड सनसेट है क्या? नहीं है। वो तो अपनी एक जगह पे वहां स्थिर है, वो अचल है। ये जो पृथ्वी की जो भ्रमण अवस्था है, जो घूमते रहती है, वो भ्रमण अवस्था की वजह से अपने को भ्रम होता है कि सूरज क्या उदय हो गया है, सनराइज हो गया है और सनसेट हो गया है। उसका सनराइज भी नहीं और सनसेट में वो अपनी जगह स्थिर होते हैं। ठीक उसी तरह संत महात्मे जो होते हैं वो जन्म मरण के परे होते हैं। संत यानी कौन? भक्तों के कल्याण के लिए भगवान ने लिया हुआ ह्यूमन फॉर्म इज संत, यानी वो भगवान है। तो उनको जन्म मरण तो होता नहीं है, वो निरंतर हमेशा के लिए एक जगह स्थिर रहते हैं, जैसा सूरज रहता है। Saints are beyond birth and death cycle. They are at their own place permanently. Does sun rise and set? It is always at one place only. शके 1603 साली रामदासाची समाधी झाली, पुरी दोन ही न शतके गेली, उदया आली ही मूर्ति. अब साईं बाबा के पहले 200 साल के पहले यानी 1603, शके 1603 यानी नॉर्मली कैलेंडर ईयर, ग्रेगोरियन कैलेंडर 1681, रामदास स्वामी ने, स्वामी महाराज रामदास स्वामी, उन्होंने जो लिखा है मनाचे श्लोक ग्रंथ, वो जो है उन्होंने समाधि ली और
इसको 200 साल भी पूरे नहीं हो गए तो साईं बाबा प्रकट हो गए। रामदास स्वामी went to self emotion in Shekeso 1603, यानी in the year 1681 1681। Within 200 years Sai Baba incarnated। भरत भूमि, अभी ना वहां की परिस्थिति, उस वक्त बाबा का जब अवतार हुआ है, बाबा का इंकारनेशन, वहां की सोशल स्टेटस क्या है, उधर का समाज की परिस्थिति कैसी है, क्या अवस्था है, इसलिए बाबा को जन्म लेना पड़ा, वो देख लिए। भरत भूमि यवनाक्रांत, हिंदू नृप पादाक्रांत, भक्ति मार्ग धाला लुप्त, धर्म रहित जन धाले। नृप यानी राजा। अभी क्या हुआ, ठीक इसी पीरियड में हिंदू, ये अपना जो भारतवर्ष में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में अटैक होने लगे, आक्रमण होने लगे मुस्लिम, वो जो भी भगवान राजा तो नहीं बोल सकते हो, यहाँ के राजा हो गए, वो तो लुटेरे थे वहां के। वो जो लुटेरे हैं, वो लुटेरे यहाँ आके इनके ऊपर आक्रमण करने लगे, और उनका यवनी अमल मुस्लिम रिजीम की स्टार्ट होने लगा, क्योंकि वो यहाँ मूल निवासी जो हिंदू है उनके ऊपर अत्याचार करने लगे, और यहाँ के जो राजा है वो एक पराजित होते गए। ऐसा हिंदू राजा था, हिंदू धर्म को राजाश्रय था, इसलिए राजा हिंदू धर्म भी पनप रहा था, लेकिन बीच में ये जो मुस्लिम का प्रभाव आ गया, उसके साथ मुस्लिम धर्म के लोग आ गए, जबरदस्ती कन्वर्ट करने लगे। वो धर्म मार्ग लोगों को खत्म हो गया, लोग भी सर्वाइवल के रहने लगे, डर के रहने लगे। हिंदू धर्म का पालन करेंगे तो उनके ऊपर लाखों करोड़ों रुपए का जिजिया कर लादा गया, यानी धर्म के मार्ग से लोग दिशाहीन होने लगे। अब वो जो रूलर थे, मुस्लिम रूलर, वो क्या करते थे, उनको धर्म के सही माने की जो कोई संबंध नहीं था। हम इस्लाम है, तुम इस्लाम हो जाओ, हम मुस्लिमीन है, तुम मुस्लिमीन हो जाओ, तुमको बाकी इस्लाम के सही माने क्या है, इस्लाम के सही रास्ते क्या है, हुजूर और नबी ने कौन सा रास्ता बोला है, इनसे उनका कोई देना लेना नहीं था। इफ यू सी द इस्लाम philosophy, it is totally contrary to the action taken by these trotters। ये जो यहाँ जो मुसलमानी अमल चालू हो गया, उनको इनसे कोई लेना लेना नहीं था, so they cannot be called as Muslimin। Muslim kings were ruling India, Hindu kingdoms were taken over by Muslims, the path of devotion of Hindus vanished, no leadership in the religion was left, people stranded and on religious path। ऐसी स्थिति में तई रामदास झाले निर्माण, शिवराय आते हाती घेऊन, केले यवनापासून राज्य रक्षण, गो ब्राह्मण संरक्षण। ऐसी अराजक स्थिति में समर्थ रामदास स्वामी का अवतार हुआ, और उन्होंने राजा छत्रपति शिवाजी, ये उनके मेंटर थे, मतलब छत्रपति शिवाजी महाराज के मेंटर रामदास स्वामी थे। तो उन्होंने शिवराय इज ए बहुत एबल, वेरी कैपेबल, सक्सेसफुल, और एट द सेम टाइम वेरी ब्रेव, जिन्होंने मराठा के साम्राज्य की स्थापना की। तो ये शिवराज के हाथों से इतना सब चारों तरफ से मुसलमानी अमल होने के बावजूद भी उन्होंने हिंदू का रक्षण किया, और हिंदवी स्वराज की स्थापना करके भृगु ब्राह्मण प्रतिपालक राज्य की निर्मित की, और उनका था
शिवाबा का राज्य, शिवराय राजा छत्रपति शिवराय का राज्य। In such disturbed period, Samartha Ramdasa Swami emerged. He guided Chhatrapati Shivaji Maharaj and protected Hindus from Muslims. He established own kingdom and protected cows and Brahmins. पुरी दोनहीन शतके गेली, पूर्वील घडी पुनश्च बिघडली, हिंदू अविंदी दुही पडली, ती मग तोडीली बाबांनी. इसके बाद ये जो रामदास स्वामी आने के बाद दो सेंचुरी भी गया नहीं होगा, 2 सेंचुरी भी नहीं गया हुआ, तो रामदास स्वामी और शिवराय इन्होंने ये जो धर्म की पुनर्स्थापना की थी वो बिगड़ गई, वो डिस्टर्ब हो गई फिर से. हिंदू और मुस्लिम ये दो जमातों में हमेशा बार बार क्लैशेस होने लगे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होने लगा, जगह जगह पर दंगे फसाद होते थे, एक दूसरे की विचारधारा एक दूसरे को पसंद नहीं आती थी, और उसकी वजह से क्या हुआ, हिंदू और मुस्लिम में एक तरफ का सोरनेस, कटुता निर्माण हो गई दोनों में, और दोनों मानव समाज के वाटर टाइट एक दूसरे की तरफ जाना आना नहीं देता था, कुछ नहीं होता था, बड़ी वैर भाव से एक दूसरे को देख रहे थे, और ये कटुता खत्म करने के लिए बाबा का जन्म हुआ है. बाबा का जन्म नहीं हुआ, बाबा का अवतार हुआ है. Within 200 years after Ramadas Swami and Chhatrapati Shivaji Maharaj, Shivaji, everything got again disturbed. शिवाजी महाराज जो गेन किए थे वो अगेन डिस्टर्ब हो गया. Hindus and Muslims started fighting among themselves, got separated and created social disturbances. Baba stopped this calamity. बाबा का अवतार इसीलिए हुआ है, देखिए, राम और रहीम एक, यत किंचित ही नाही फरक, मग भक्तीच धरावी का अटक, वर्तावे तुटक किमर्थ. राम और रहीम एक ही भगवान के दो नाम है, एक ही वो सुपर पावर के दो नाम है, उनमें ये तो फर्क नहीं है, वो तो एक ही है. तो हम सब एक ही परमेश्वर के बच्चे हैं, एक ही अल्लाह के बच्चे हैं. राम जिसको कहते हैं, रहीम जिसको कहते हैं, उसी के हम बच्चे हैं. तो हमने अलग अलग मार्ग का अनुकरण करते हुए, अलग अलग मार्ग पर चलते हुए आपस में झगड़ा क्यों करना चाहिए? हमारी अलग अलग सेपरेट किचन क्यों करने चाहिए? अपनी अपनी रोटियां अलग से क्यों सेकनी चाहिए? मंदिर और मस्जिद ऐसे अलग अलग हिस्सों में क्यों हमें बांट लेना चाहिए? ऐसे अनेक सवालात बाबा ने उस वक्त खड़े किए. क्यों भाई? जिसको आप हिंदू राम बोलते हुए वही आप उसको रहीम बोलते हैं, तो आप में फर्क क्या है दोनों में? ये फिलॉसफी, ये विचारधारा का पुनर्स्थापना करने के लिए, धर्म का नए सिरे से अर्थ लगाने के लिए बाबा का अवतार हुआ. Ram and Rahim are names of same God. There is absolutely no difference between them. We are sons of the same God. Then why should we quarrel among themselves, forming different religious paths? Why should we differentiate? Why should we create compartment of mandir and masjid? Baba raised these questions. काय तुम्ही लेकरे मूड, बांधा हिंदू अविंदाची सांगड, व्हा दृढ सुविचारारूढ, तरीच पहिलं थड पावाल. ऐसे अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ ये समाज, ये एक ही परमेश्वर के बच्चे होने के बावजूद भी इनकी मूर्खता देखिए. मूर्ख में ही उनकी गिनती होनी चाहिए, पागलों में इनकी गिनती उनकी चाहिए कि अरे एक ही नाम है,
एक ही भगवान है, एक ही अल्लाह है, उसी से हम सब जन्मे हुए हैं, तो उसमें अलग अलग पाथ क्यों होना चाहिए? सबका रास्ता तो उसकी तरफ ही जाता है। तो हिंदू और इस्लाम मुस्लिमीन में दिल जमाई होनी चाहिए, वो एक होना चाहिए, उनमें एक भाव होना चाहिए। भक्ति मार्ग का सशक्त और दृढ़ ऐसा सुदृढ़ विचार है ये जनमानस में लोगों के मन पर उसका इम्पैक्ट होना चाहिए। समाज अगर एक संध हो ना, समाज अगर एक विचार का हो, तो ही हम ये भव सागर पार कर जा सकते हैं, हम परमेश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। ये नया विचार लेके बाबा आए, आपस में भाईचारा, ये परमेश्वर प्राप्ति की पहली निशानी है। ये विचार सबसे पहले बाबा ने दृढ़ किया उस ईरा में। Those who create such partitions should be called fools. Hindus and Muslims should come together. We must establish strong thoughts of devotions in society. If society remains together, then only we can cross ocean of world and reach to the God. Baba appeared with this new approach. Then only one can cross ocean of this world if we are united together. वादावादी नहीं, ये बाबा का सिग्नेचर लाइन है, ये जो स्टैंजा है, वादावादी नहीं बरी, नको कुणाचे बरोबरी, वा नित्य निज हिताचे विचारी, रक्षित श्री हरि तुम्हारा। आपस में झगड़ा क्यों करना है? आपस में क्यों एक दूसरे पे वाद विवाद करके, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करके दंगे फसाद करवाते हो? देखो भाई, जो झगड़ा करके और आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करके किसका भी भला नहीं हुआ है। हमने हमारी तुलना, हमारी बराबरी किसी और दूसरे के साथ करना बड़ा योग्य नहीं है। हम क्या करना चाहिए? वो नित्य शाश्वत चिरंतन जो परमेश्वर है, उसके बारे में सोचना चाहिए, और उसके बारे में सोचे तो वही हमारा रखवाला है, वही हमारा रक्षण करेगा। Nobody gains anything by quarreling. We should not compare with anybody else. We must think of our permanent, unending welfare. Then only the great God will protect us. योग, याग, तप, ज्ञान हे सर्व हरि प्राप्तीचे साधन, असुनी हे जो हरि विहीन व्यर्थ जनन तयाचे। योग यागने यज्ञ यहाँ की विधि, योग साधना, यज्ञ विधि, ध्यान धारणा, नाम जप, तपश्चर्या और ज्ञान प्राप्ति, ये परमेश्वर प्राप्ति के 6 साधन बोले गए हैं। ये परमेश्वर के प्राप्ति के साधन होने के बावजूद अगर इंसान, आदमी अगर उसकी प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, वो अगर भक्ति मार्ग पर चल नहीं सकते हैं, तो आदमी का जन्म लेना व्यर्थ है, यूजलेस है ना, यूजलेस है। Yoga sacrifices, meditations, chanting name, penance, and acquiring knowledge are methods of reaching God. Whosoever does not follow these methods knowingly and does not follow path of devotion is leading useless life. कोणी काही केलिया अपकार, आपण न करणे प्रतिकार, करवेल तरी करा उपकार, उपदेश सार हा त्याचा। अपकार यानी अपने बारे में कोई हमें डैमेज पहुंचाते हैं, हानि दुख करते हैं, कुछ दुख पहुंचाते हैं, क्षति करते हैं, हमें ईजा करते हैं। वो अरे कोई हमें अगर दुख पहुंचाता है, दुख देता है, हमारा नुकसान करवाता है, हमें त्रास देता है, हमें परेशान करता है, तो उसका प्रतिकार मत कीजिए।
वो उसको उसके ऊपर आप उपकार कीजिए, उसको उसके ऊपर हमारा जो धर्म है उसके हिसाब से क्या करिए, मैं तो उसको समझने की कोशिश करो। साई समर्थ ने अपने पूरे अवतार कार्य में यही फिलॉसफी, यही विचारधारा पे चलते रहे, जिन्होंने उनको बहुत सताया अर्ली डेज में। जब ये महज एक पागल फकीर के रूप में जब बाबा वहां थे, लोग समझते थे एक्सेंट्रिक फकीर है। बहुत तकलीफें हुई है बाबा को, बहुत तकलीफ हुई है, लेकिन बाबा ने उनको कभी रिवेंजियस तरीके से किसी को भी नहीं देखा। सबका मालिक एक है करके उनको माफ कर दिया है। रैदर उनको, लोगों को बाद में डर लगता था, अरे ये तो भगवान निकले हैं, ये तो बहुत समर्थ शक्तिशाली अवलिया है, ये तो अपना भी नुकसान करेगी, कि हमने इनको बहुत तकलीफ दी है। उनको भी बाबा ने प्रेम भाव से अपना सा किया है। We should not reciprocate even if somebody harms us, creates loss to us. On the contrary, we should oblige him. Is the essence of advice of Sri Sainath Bhagavan. स्वार्थात तैसाची परमार्थास, स्वार्थास तैसाची परमार्थास, उपदेश हितावह बहुस, उच्च नीच श्री शूद्रास, दोपट सकड़ास हा मार्ग। हम तो प्रपंच मार्गी है, हम घर गृहस्थी वाले हैं, हम संसार मार्गी लोग हैं। और पारमार्थिक जो लोग हैं, सन्यासी, तड़ी, तापसी, जप जपी तपी, ये जो तप करने वाले, जप करने वाले, सन्यास धर्म लिए हुए, ये दोनों के लिए भी बाबा का उपदेश कितना हितकारक है। देखिए, श्री शूद्र उच्च नीच, वो सबके लिए, सबके लिए मार्ग खुला है। अभी तो स्त्री शूद्र उच्च नीच कुछ रहा नहीं है, लेकिन ये सबके लिए सरल, सीधा सरल सीधा मार्ग ही है। और कैसा है? ओपन मार्ग है, उसे कोई बेसिक रिक्वायरमेंट हासिल करने की जरूरत नहीं है। दिल साफ रखो, किसी के बारे में कुछ बैरभाव मत रखो, और बाबा की भक्ति करते रहो। यही मार्ग पे चलना चाहिए, और यही मार्ग पे सबने, यही राजमार्ग है। बाबा ने ये भक्ति का राजमार्ग, हाईवे सबको दिखाने का काम किया है, और यही बाबा के अवतार कार्य का एक उद्देश्य है। This advice is helpful to the family person as well as spiritual person. This path is open and clear path. Everybody should follow this path. Baba has shown this path to all. स्वप्नीच्या राज्याचे वैभव, जागे झालिया जैसे वाव, तैसाची संसार हा केवळ माव, भावना हितयाची। बाबा क्या बोलते थे? माव यानी झूठा, उसका झूठेपन, उसका जादुई, कपट। वाव यानी व्यर्थ है, यूजलेस है, निष्फल है। अभी देखिए, हम सपना देखते हैं, एवरीबॉडी ड्रीम देखते ही है। अब स्वप्न में कभी कभी हम राजा भी बन जाते हैं, बड़े श्रीमंत भी बन जाते हैं, बहुत बड़े 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 चीज की अनुभूति लेते हैं, और उसका उपभोग भी लेते हैं सपने में। अब लेकिन ये सब चल रहा है, मैं डोनाल्ड ट्रंप के अपोज में खड़ा हूं, मैं जो को भी हरा के अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने जा रहा हूं, ऐसे ख्वाब सबको करते हैं। लेकिन जैसे ही वो ख्वाब, नींद में से आप जाग जाते हो, वो ख्वाब कहाँ होते हैं? व्यर्थ होते हैं, यूजलेस होते हैं। ठीक उसी तरह जो संसार, जो घर गृहस्थी, जो हम ये जीना जीते हैं, वो एक भ्रम है। अगर ये सच होता तो ये परमानेंट होता। मेरी बीवी अनंत साल से मेरे साथ रहती, मेरा बच्चा अनंत साल से मेरे साथ रहता, ये जो मेरा जो पर्सनल प्रॉपर्टी जो भी है वगैरह, ये अनंत वर्षों से मेरे साथ, अनंत साल, जिसको मुझे पता भी नहीं मेरे साथ, मुझे मेरी खुद उम्र का अंदाजा नहीं रहता।
लेकिन ऐसा है, अगर परमानेंट नहीं है तो वो क्या है? महज एक दिखावा है, एक छलावा है, व्यर्थ है, ये निष्फल है। यही विचारधारा, यही सद्विचार, यही भावना बाबा ने मुमुक्षु जनों को दिखाई। अरे बेटा, तुम जो मेरा मेरा कर रहे हो कुछ फायदा नहीं है, एक 4 दिन की चांदनी है। यही बाबा ने बता दिया उनको। The treasure, fame, etc. acquired in a dream is useless after getting up from sleep. Similarly, this world is also imaginary. It should be treated as useless and fruitless. This good thought is given by Baba for persons desiring to get liberated from the life and birth and death cycle. देह आदि सुख दुःख मिथ्यत्व, सुख दुःख मिथ्यत्व हे चिदयांचे प्रपंच तत्व निज अनुसंधाने स्वप्न भ्रमत्व दौड़ोनी मुक्तत्व साधिले। तो पहले एक बार एक उसकी जो टर्मिनोलॉजी समझ लेते थे। प्रपंच यानी विस्तार, माया, भ्रम, अविद्या, जग, संसार बोल सकते हैं उसको। निज अनुसंधान, कनेक्टिविटी, निज यानी मेरी अपनी कनेक्टिविटी, अंतरात्मा से तादात्म्य बना, अंतरात्मा से कनेक्ट होना। मिथ्यत्व यानी भ्रम है, भ्रम मूलक है, झूठा है, खोटा है, पूरा निष्फल है, यूजलेस है। देह के साथ आने वाली जो सुख दुख की भावना है, ये तो यूजलेस और भ्रम मूलक है। कितने टाइम रहती है भावनाएं? ये संसार, ये विद्या, ये जग, ये सब अविद्या के सोर्स है, अविद्याजनक है। ये जो प्रपंच है, ये घर गृहस्थी है, ये सब है, ये जो खोटा है, झूठ है पूरा। ये प्रापंचिक भ्रम है, जो प्रपंच का ये मेरा मेरा मैं करता हूं, ये जो है, ये भ्रम का निरसन होना चाहिए, भ्रम का पहले विनाशन होना चाहिए, फिनिश होना चाहिए, वैनिश होना चाहिए। उसके बाद अपने अंतरात्मा जो है, वो अंतरात्मा का भगवान के साथ तादात्म्य यानी कनेक्टिविटी होना, इसी को मुक्तावस्था बोलते हैं। और बाबा ने कोई संसार से कोई अटैचमेंट नहीं था, सब डिटैच होके भगवान के साथ परमानेंटली उनकी अटैचमेंट थी, रादर वही भगवान थे, और ये उन्होंने प्राप्त की हुई थी। The happiness and sufferings to this body are illusionary and fruitless. This world is an ignorance, avidya hai. After getting rid of this illusion and realizing the life, Baba got liberated and became one of the super soul, and that is called Parabrahma. And listen, what Baba achieved it, बाबा तो उस अवतार के साथ आए, लेकिन बाबा ने ये रास्ता दिखाया, यू कैन ऑल्सो गेट द स्पिरिचुअल लेवल लाइक माइन। आप भी मेरे साथ परब्रह्म बन सकते हो। पाहोनी शिष्याची बद्धता अति कळवळा जयाचे चित्ता कैसी लादेल देहातीतता हेची चिंता अहर्निश। बाबा को किसकी चिंता रहती थी हमेशा? इस संसार मार्ग में जो मर्यादा के बंधनों में, संसार के मर्यादाओं में, बंधनों में अटके हुए जो मेरे भक्तगण है, उनकी दया आती है, करुणा आती है, बाबा का मन उसमें पिघल जाता है। वो क्या बोलते हैं? भक्त की देह की अवस्था, ये देहातीत अवस्था होनी चाहिए, यानी मुक्तावस्था उसको मिलनी चाहिए। उसको ये मुक्ति कैसे मिलेगी, इसकी निरंतर चिंता बाबा को हमेशा होती थी। मेरे भक्त का कल्याण कैसे हो। कल्याण कौन सा? शाश्वत कल्याण। कल्याण का मतलब 2 गाड़ी वोल्क्सवैगन आ गई, 2 ये हुई, वो नहीं।
मटेरियलिक सोर्स से बाबा से कोई लेना देना नहीं। आपकी जरूरत है तो वो करते हैं पूरे। क्यों? आपका स्पिरिचुअल अपलिफ्टमेंट होने के लिए। ये बात है। Baba was feeling pity and compassion for those persons tied up in the family lives. संसार घर गृहस्थी में जो बंधे हुए हैं. He was always worried as to how these persons would be liberated. So बाबा हर एक आदमी को उसकी योग्यता के अनुसार उसका मार्ग दिखाते थे, मुक्ति का मार्ग, लिबरेशन का मार्ग, वे ऑफ लिबरेशन. अहम अहम ब्रह्माकार वृत्ती, अखंडानंदाची मूर्ती, अखंड आनंदाची मूर्ती, निर्विकल्प चित्त स्थिति, यही निवृत्ति विसावया. कैसे थे बाबा? मैं ब्रह्म हूं, इसका ज्ञान जिसको हुआ है, ऐसी अवस्था यानी ब्रह्मावस्था. अखंड आनंद, अखंड, हमेशा के लिए, अनस्टॉपेबल, अनकटेबल, निर्विकल्प चित्त स्थिति, यानी उनके चित्त में, उनके मन में किसी प्रकार के संकल्प विकल्प कोई नहीं होते थे. आज मुझे गाड़ी लेनी है, आज मैं इसकी डिलीवरी लेनी है, ये कुछ नहीं होता था उनके पास. विसावा, विसावा घेण्यास, विश्रांति घेण्यास, यानी विसावा यानी रेस्टिंग प्लेस. जब आपकी ये स्थिति होती है तो रेस्टिंग, जो विसावा है, जो रेस्टिंग प्लेस है, ऑटोमेटिकली विश्रांति स्थान आपको ढूंढते हुए आपके पास आता है. मैं ही ब्रह्म हूं, मैं वो सर्वश्रेष्ठ पर ब्रह्म का एक अंश हूं. ये शाश्वत ज्ञान, इसको ब्रह्म ज्ञान भी बोलते हैं, प्राप्त हो गया. ऐसी अवस्था में बाबा थे. ब्रह्मा ब्रह्मज्ञानी, उसके पास ब्रह्म ज्ञान, सिर्फ ब्रह्म ज्ञानी तो नवते, लेकिन वो खुद ही पर ब्रह्म थे. निरंतर आनंद, सर्वश्रेष्ठ आनंद का स्रोत, यानी उसका जो फ्लो है, वो फ्लो यानी बाबा होते हैं. बाबा के चित्त में किसी प्रकार की संकल्प विकल्प की भावना थी नहीं. संसार मार्ग में वो घिरे हुए नहीं थे. वो खुद एक निवृत्त अवस्था में रहते थे, विरक्त अवस्था. ऐसी विरक्त अवस्था में, विरक्त अवस्था यानी परमेश्वर प्राप्ति का आश्रम स्थान, विश्राम स्थान, वो समझा जाता है. I am absolute self Brahma. I am absolute self Brahma. I am a part of this God. Baba was in the state of knowledge. He was not only aware of the absolute self, but he himself was absolute self, Brahma. Continuous in bliss. The source of bliss was Baba. Totally retired and unattached to worldly things was Baba. और यही चीज है जो हमें प्राप्त करनी है. एक लेते हैं और फिर विश्राम लेते हैं. घेवुनिया टाळविने, दारोदार भटकणे, आल्या गेल्या केविलवाने, हात पसरणे ठावेना. ये जो ढोंगी साधु होते हैं ना, वो क्या करते हैं, हाथ में बीना लेंगे, एक तारी लेंगे, वो चिपली लेंगे, और कुछ मिलेगा, अर्थ प्राप्ति होगी, ऐसी अपेक्षा से हर एक दर 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 भटकते रहेंगे. ऐसा बाबा को कभी भी जरूरत ही नहीं थी. बाबा इसमें थी नहीं. ये तो बस ढोंगी साधुओं का काम था. बाबा को तो कुछ मिला, अर्थ प्राप्ति होना, इसकी कोई अपेक्षा ही नहीं थी. ऐसा विचार भी उनमें, उनके मन को छूता नहीं था. Begging from anybody with instrument in hand and earn money for personal advantages like hypocrites was never known to Baba. He never thought in this line, and he has never followed that. Om Sai Ram. Jayshree ji, Nagaraj, you are there. So please take over and let me have break. Please.
आगे के कुछ स्टैंजाज में, आगे के कुछ ओलियों में हमको सही में बहुत नॉलेज मिलने वाला है, अपना कंफ्यूजन निकलने वाला है। उसमें गुरु और गुरु के प्रकार बाबा ने वर्णित किया गया है। देखिए, बहुत ऐसे अस्ति गुरु शिष्य करीति धर धरु देती बड़ी चेकान मंतरु सिंतरोनी वित्तार्थ। अपने लाइफ में ऐसे बहुत भोंदू ढोंगी साधु मिलेंगे जो एक्चुअली ठग होते, ठगी करते हैं। वो आप शिष्य को जबरदस्ती पकड़ते हैं, अपने अर्थार्जन वित्तार्जन के लिए, अपने लोभ के खातिर फंसाते हैं और उनको कोई भी ऐसा कान मंत्र देते हैं। ऐसे ढोंगी जो साधु है बहुत है, बहुत है इस दुनिया में। There are large number of hypocrites, gurus, who preach just to make money for selfish goals. They indulge in preaching some useless incantation by force. They claim themselves to be a Sadgurus. Beware of such gurus. शिष्यास धर्माचे शिक्षण स्वये अधर्माचे आचरण त्याचे निकैसे भवतरण जन्म मरण सुखेल। अपने शिष्यों को धर्म के अनुसार शिक्षा अपना बर्ताव करना चाहिए, बिहाव रखना चाहिए, ऐसा बोलेंगे, उनको धर्म की पूरी शिक्षा देंगे, लेकिन खुद यानी वो मात्र वो फॉलो नहीं करेंगे। आप मुझे बताइए, जो पर्सन खुद वो नहीं फॉलो करता है, अपने निजी लाइफ में अय्याशी करता है, तरह तरह के भोग विलासी अय्याशी का जीना जीता है और स्टेज पे आने के बाद सबको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, ये खुद ऐसा आचरण करता है, ये जो है, ये इन लोगों को ये लाइफ एंड डेथ साइकिल, बर्थ एंड डेथ साइकिल से कैसी मुक्ति मिलने वाली है? उन्होंने महज एक धंधा बना के रखा है अध्यात्म को। बहुत सारे लोग मिलते हैं, बहुत सारे, और लोग उसमें फैनेटिक भी हो जाते हैं। देखा होगा कितने बाबा उधर हुए ना, वो हरियाणा वगैरह वो साइड में 2-3 सीरीज में 3-4 बाबा, कुछ लोगों को तो 20-20 साल की जेल हो गई है। ये सिर्फ अर्थार्जन के लिए है। और एक पर्टिकुलर लेवल पे लोग भी इतना मैड हो जाते हैं, उनके पीछे फैनेटिक हो जाते हैं, वो उनके दे आर नॉट एबल टू लिसन, उनको पता नहीं चलता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। बाबा ने पहले क्या किया, ऐसे गुरु के नाथ को मत लगो, या तो गुरु को पहले पहचानो, ऐसी शिक्षा पहले दी। Some persons preach religion to students, but they themselves do not follow the practices. How can one cross the word cycle of birth and death? है ना? आपुल्या धार्मिकत्वाची ख्याती व्हावी झेंडे फडकावे जगती, हे लवहीन दयाचे चित्ती ऐसी ही मूर्ति साईची। अब ये जो ऊपर वाले सदगुरु है ना, वो प्रसिद्धि के पीछे, पब्लिसिटी के पीछे लगे रहते हैं, उसके लिए न जाने क्या क्या करते रहते हैं। अपने धार्मिक वृत्ति की वो बाबा है, ऐसी उनकी प्रसिद्धि भावी, वो जग में फेमस होवे, इसके लिए अपनी सब जग में अपनी ख्याति हो जाए, इसके पीछे वो लोग रहते हैं। बाबा इसमें से कुछ भी नहीं थे। उनके दिन में ऐसी
क्षण मात्र में एक छोटी सी चीज भी कभी भी नहीं आती थी कि वो प्रसिद्धि के लिए सब कुछ करे। अब बाबा का और ये बाकी के लोगों का देखिए क्या विचार था। देखो ना, जब बाबा के जेब में सिर्फ 16 रुपए थे, वो भी 16 रुपए कहाँ, वो चूंकि उनका कोई वारिस नहीं था। आगे अपन देखेंगे 42 चैप्टर में, 42 43 में कुछ अपने वैयक्तिक अपनी निजी कुछ संपत्ति नहीं थी, और उन्हीं के नाम पर जो थे हजारों करोड़ की निजी संपत्ति छोड़कर चले गए। ऐसे भी सदगुरु है। अब क्या बोलेंगे इसको? लोग तो पागल के जैसा चढ़ावा देते रहेंगे, आपको देते रहेंगे। आपको वो कहाँ रखना है कि ये रखना है, वो आपके ऊपर है। समाज के कार्य के लगना चाहिए। Sai Bhagwan never had desire to publicize his religious tendency or spread his popularity. देह अभिमाना न जेते वस्ति, शिष्या ठाई अत्यंत प्रीति, सदैव जेते हित प्रवृत्ति, ऐसी ही मूर्ति साई की। देखिए इसमें साई की महिमा कहाँ है? साई बाबा की मैं यानी ये देह, मैं साई बाबा हूं, कभी बाबा ने कुछ बोला नहीं। ये तो अज्ञान है, ये भ्रम मूलक है, ये वृथा अभिमान है, फालतू की झंझट है। बाबा के मन में, बाबा के व्यक्तित्व में इस तरह के विचार को जरा भी जगह नहीं दी। भक्तों के लिए दया भाव, करुणा, भक्तों का मंगल हो, कुशल हो, वो यही आनंदी वृत्ति से बाबा रहते थे। बाबा यानी सच्चिदानंद, सच्चिदानंद, और कुछ भी नहीं था उनके पास। देखिए राजपाट आज कितना करोड़ों का संस्थान खड़ा है। बाबा के वक्त में बहुत लोग देने को तैयार थे। बाबा ने कभी कुछ लिया? जो लिया वो सबको बांट दिया, अपने पास कुछ भी नहीं रखा। He had overcome the concept that I am body. He had no false pride. Pity, compassion, and welfare of all was his happy tendency, and it was the aim, goal of his life. इसलिए तो बाबा का अवतार हुआ है। अब आगे इसकी स्टैंडर्ड से दो गुरु कैसे होते हैं। देखिए अपने जीवन में दो टाइप के गुरु होते हैं। एक होता है नियत गुरु और वो होता है अनियत गुरु। पहले अनियत गुरु आता है, बाद में नियत गुरु आता है। नियत अनियत गुरु अस्ति गुरु दो प्रकारो, एक काता कार्य निर्धारो, स्पष्ट करो श्रोतिया। अब गुरु के दो प्रकार है, एक अनियत गुरु और नियत गुरु। दोनों के कार्य विभिन्न है, हर एक का अपना अपना कार्य है। पहले वो अपने विस्तार से देखते हैं कि अनियत गुरु क्या करते हैं और नियत गुरु क्या करते हैं। अब में इसमें गलती होती है और गलतफहमी भी होती है, कंफ्यूजन भी स्टेज भी होता है। अनियत गुरु किसको बोलना चाहिए और नियत गुरु किसको बोलना चाहिए। यानी नियत गुरु यानी अपने डेस्टिन्ड जो गुरु है उसको नियत गुरु। अनियत यानी वो जो परमानेंट अपने लाइफ में नहीं है लेकिन वो रास्ता दिखाने काम करते हैं, वो देखते हैं पहले। There are two types of preachers. One natural preacher and other is a temporary or unnatural preacher. They work on different field. Let us study that in detail. दैवी संपत्ति परिपक्व करणे, निर्मल होणे अंतःकरणे, एवढेच अनियत गुरुचे देणे, मार्गी लावणे मोक्षाच्या। हाँ परमार्थ के मार्ग पर लगाने वाला जो है, मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए वो काम नहीं है उनको, लेकिन व्हाट दे डू, तो वो अपने को परमार्थ में मार्ग में लगाता है। अनियत गुरु क्या करते हैं? अनिश्चित होते, वो टेम्पररी फिनोमेना होता है अपने जीवन में। वो क्या करते हैं? आपको ऐसा मार्ग दिखाते हैं, आपको ऐसा ज्ञान देते हैं, आपको ऐसा अपना सोल की प्यूरिफिकेशन की प्रक्रिया वो सिखाते हैं कि हमारे आत्मा का शुद्धिकरण कैसा करना है। ये जो मलिन आत्मा है,
पाप पुण्यों के ये जो विशियस सर्कल में जो अटका हुआ है, उसमें से कौन सा रास्ता है जो पहले आपको जीरो अवस्था में, यानी पाप पुण्य के जीरो अवस्था में लेके जाएगा, अंतकरण का प्यूरिफिकेशन करेगा, सोल प्यूरिफाई करेगा। और परमेश्वर का ये लिमिटलेस, बाउंड्रीलेस, अनंत अपार ये जो सामर्थ्य है, ये ग्लोरी है, रिचनेस है भगवान का, इसे ऐश्वर्य का, भगवान के ऐश्वर्य के, भगवान के साम्राज्य का उनसे अवगत कराने का काम करते हैं। एंड दे शो यू द नेचर, स्वरूप ऑफ भगवान। दे एक्सप्लेन यू, they tell you that this is the way, this is the thing, these are existing। भगवान है, भगवान का कार्य यह है, भगवान करते हैं, भगवान की लीला अपार है, भगवान का पूरा ये सृष्टि सौंदर्य ये भगवान से बना हुआ है। ऐसा काम कौन करते हैं? ये करते हैं अनियत गुरु। यानी इनका काम क्या होता है? शुद्ध और सात्विक, शुद्ध भाव का ज्ञान दे देना, इतना ही काम अनियत गुरु का होता है। They just make you aware of the things, what is existing in the world, what you should follow in the path of spirituality। ये उनका काम है। This guru, any preacher, establishes the fact that you are Brahma. Absolute truth is a Brahma. After confirming students' faith in him, he removes duality in him. Sorry. To purify the spiritual heart, to explain the great power and treasures of God and teach this knowledge is the limited area of unnatural preacher. Now natural preacher, नियत गुरु से होता सख्य। अब ये प्यूरिफिकेशन आ गया। प्यूरिफिकेशन होने के बाद क्या होता है? हमें नियत गुरु की तलाश शुरू हो जाती है। वो प्रोसेस ऑटोमेटिकली कंटिन्यूटी शुरू हो जाती है। जब अपना प्योर सोल हो जाता है ना, तो पाप पुण्य के भोग अपने को समझ में आते हैं, अपने आपकी तलाश में हम निकल जाते हैं, जैसे नरसिंह स्वामी महाराज निकले थे। सो प्यूरिफिकेशन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है। एंड देन इट टुक्स 11 years फॉर हिम टू नरसिंह स्वामी महाराज। वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है अपने गुरु के तलाश में। नॉट फिजिकली यू शुड मूव, ही हैज मूव फिजिकली, बट अपने आप में तलाश करने लगते हैं हम। अब नियत गुरु क्या करते हैं? नियत गुरु सी होता सख्य, द्वैत जावनी होय ऐक्य, तत्वमसी महावाक्य, तयाची साक्ष को द्वि। अभी प्रत्येक वेद, 4 वेद है, ये तत्वमसी ये महावाक्य है। प्रत्येक हर एक वेद का एक महावाक्य है। ये तत्वमसी जो है ये वाक्य है, ये सामवेद का वाक्य महावाक्य है। मैं हर एक वेद का एक वाक्य जो है वो आपको पहले बताता हूं। ऋग्वेद का महावाक्य है प्रज्ञानम ब्रह्म, यानी हर एक देह में बसी हुई चैतन्य शक्ति, वही प्रज्ञान, वो वही जग का उपादान कारण है। वो कौन सा? अहम ब्रह्म अस्मि, ब्रह्म चैतन्य, यानी मैं हर एक प्राणी मात्र में, हर एक सजीव जगत में जो बसा हुआ जो चैतन्य है वो मैं ही हूं। इसी को कहते हैं प्रज्ञानम ब्रह्म। यह है ऋग्वेद का वाक्य। यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि, ऋग्वेद का प्रज्ञानम ब्रह्म, यजुर्वेद का अहम ब्रह्मास्मि। वो जो ब्रह्म है ये, यानी मैं ही हूं, वही मैं यहाँ बसा हूं। और ये अगर मैं इसको विकसित करूं, डेवलप करूं, तो क्या होगा? दोनों का स्वरूप एक ही हो जाएगा। मैं ही ब्रह्म हूं, इस भावना, ये विचारधारा, विचार तो रहता ही नहीं उस वक्त, तो अवस्था हो जाती है। अहम ब्रह्मास्मि अवस्था, ये जो वाक्य है ये यजुर्वेद का वाक्य है।
सामवेद का वाक्य है तत्तत्वमसि। वो जो ब्रह्म है वो तू ही है, वो जो सत्य तत्व है वो तू है। और अथर्ववेद का वाक्य क्या है? अयम आत्मा ब्रह्म, यानी ये तेरा आत्मा है, यही ब्रह्म है। प्रज्ञानम ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, तत्तत्वमसि एंड अयम आत्मा ब्रह्म। ये चार वाक्य चार वेदों के हैं। यहां जो लिखा है तत्तत्वमसि महावाक्य, तत्वमसि महावाक्य तयाची साक्ष्य दो देवी। नियत गुरु क्या करते हैं? वो गुरु के चरणों में अपनी निष्ठा एक बार न्युच्छावर करने के बाद, उनको टोटल सरेंडर करने के बाद, वो अपने आप का द्वैत भाव जो है, आईनेस, योरनेस, माइनेस, माइन एंड योर्स, ये भाव पहले नष्ट कर देते हैं। नियत गुरु अपने शिष्य को भी अपने जैसा ही बना लेते हैं और उनको ये इसका ज्ञान देते हैं, वो ब्रह्म यानी तू ही है, तत्तत्वमसि। इस वाक्य का परिचय नियत गुरु आपको देते हैं, यानी आपके अंदर द्वैत भाव जाकर आपके अंतर के अंतरात्मा को परमात्मा से जुड़ाने का, कनेक्ट करने का काम नियत गुरु करते हैं। अनियत गुरु आपको परमार्थ का मार्ग दिखाते हैं, नियत गुरु आपको परमार्थ दिलाते हैं। परमेश्वर प्राप्ति का मार्ग अनियत गुरु दिखाते हैं, नियत गुरु परमेश्वर की प्राप्ति करवा देते हैं। आ गया समझ में दोनों का कंपार्टमेंट कहां है? तो साईं भगवान कौन है? वो परमेश्वर प्रदाता है। वो परमेश्वर को आपको मिलाने का, परमेश्वर से कनेक्ट करने का काम ये नियत गुरु है। तो हमारे नियत गुरु कौन है? ये। अब साईं बाबा तक लेके जाने का काम, साईं बाबा से आपको परिचय कराने का काम, साईं बाबा की विचारधारा आपको दिखाकर आपको भक्ति के यानी भक्ति की भावना आपके अंदर जागृत कर आपका आत्मा प्योर आत्मा हो, वो जो प्यूरिफिकेशन का काम ये कौन करते हैं? ये अनियत गुरु। ये परमानेंट नहीं होते आपके लिए जीवन में, टेम्पररी होते हैं, लेकिन वो आपको एक रास्ता दिखा के जाते हैं, वो लाइट दिखा के जाते हैं, और वो आपके एज ए लाइट पोल जो होते हैं ना, वो लाइट पोल के हिसाब से काम करते हैं। दोज आर कॉल्ड अनियत गुरु है। Niyat Guru establishes the fact that you are Brahma, absolute truth. After confirming students' faith in him, he removes the duality in him. उस वक्त वो तुरीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। वो जो शिष्य नहीं रहता है, वो तो सदगुरु का ही उसको दर्जा हासिल होता है और तुरीय अवस्था में निकल जाता है, देह भान रहता ही नहीं है। हमने देखा है लास्ट इसमें। चराचरी भरले गुरु, भक्तार्थ होती साकारो, सरता अवतार कार्य भारो, निजावतारो संपितो। ऐसे अनेक नियत गुरु ये चराचर में बसे हुए हैं। प्रकृति में ये सकल जड़ जीवों में ऐसे अनंत गुरु है, इनको सदगुरु कर सकते हैं। ये सदगुरु जो है भक्तों के कल्याण के लिए ही निर्गुण निराकार से सगुण साकार हुए आते हैं, अव्यक्त से व्यक्त होते हैं, और अपना अवतार कार्य पूरा होने के बाद ये अपने अवतार खुद खत्म करते। बाबा ने अपना अवतार खुद खत्म किया, ऐसे ऐसे एमके के टाइम पे मैं जाने वाला हूं, पहले डिसाइड कर दिया, अभी मेरा कार्य खत्म हो गया। और सही मानों में आज बाबा इज ए सिंबल ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन। जात पात धर्म पंथ इनकी सब श्रृंखलाएं बाबा ने खत्म कर दी है। मैं कौन हूं? मैं साईं भक्त हूं। That's all. मैं साईं बाबा का भक्त हूं। लोगों की आपके तरफ देखने की, उसके लिए तो करना नहीं है, वो छोड़िए, लेकिन दृष्टि बदल जाती है। ये जात पात क्रीड कास्ट के परे
जो बाबा का तत्व ज्ञान है उसको फॉलो करने वाला लड़का है, साई भक्त है। यही तो पहचानत है साई भक्त, साई बाबा की। हाँ, आप अगर साई बाबा के भक्त कहलाते हो खुद को, और अगर जात धर्म पंथ काज में विश्वास रखते हो, तो लानत है आपकी जिंदगी पर। यूजलेस है आपका। साई बाबा के भक्त मत कहलाओ आप अपने आप को। इसके इसके परे उभर कर आपको मोक्ष की प्राप्ति देने वाले जो प्रदाता है, मोक्ष प्राप्ति का, मोक्ष प्रदान करने वाले हैं, वो साई भगवान है। लेकिन कब? आपके अनियत गुरु। समटाइम्स ही बिकम्स अनियत गुरु एंड गुरु हिमसेल्फ, दोनों भी। बाबा जो भूमिका निभाते हैं, आप कुछ लोगों का ये होगा, मेरे जीवन में तो अनियत गुरु आया ही नहीं। बाबा ही आते हैं अनियत गुरु के हिसाब से। और जहां जब आप उसको, ये आपके जो प्री रिक्विजिट्स है, जो प्री क्वालिफिकेशन है अनियत गुरु के साथ, वो खत्म होने के बाद वो खुद ही नियत गुरु बन जाते हैं आपके। In inmates and inanimates of this illusion, Guru is always present. For uplifting the devotees, preacher comes in the form from formless. Brahma, Brahma and finishes his form after performing his duties. आपको बताने के लिए आता है। That is why बाबा ने अवतार लिया है, रियल धर्म के सही माने क्या है। या द्वितीय कोटि तिल साई, चरित्र तयाचे वर्णोमी काई, जैसी तो बज बुद्धि देई, तैसी जी होई लेखनीय। ऐसे अलौकिक नियत गुरु के स्वरूप में जो भगवान खुद आए हैं, उन्होंने जो अवतार लिया हुआ है, भगवान साई के बारे में मैं क्या बयां करूं। जो नियत गुरु के स्वरूप में आए हैं, ऐसे चिरंतन सदगुरु के बारे में मैं कौन हूं, क्या उनका वर्णन करने वाला। वो तो साई जैसी बुद्धि देंगे, वैसे मैं लेखन करते रहूंगा। और ये यही हेमरपंत जी की भावना है। कौन कर सकता है उनका बयान? मनुष्य के ग्रास्पिंग पावर के बाहर जिनका व्यक्तित्व है, आकलन शक्ति के बाहर जिनका व्यक्तित्व है, उसका चरित्र चित्रण कैसे किया जा सकता है? नहीं किया जा सकता। वही है यहां। Sai is of this second type of preacher, Niyat Guru. How can I explain his biography? I shall go on writing as he desires and as he makes me write. लौकिकी विद्याचे अनेक गुरु, स्वरूपी स्थापिती तोची सद्गुरु, समर्थ तोची जो दावी भवपारू, महिमा अगोचरू अगोचरू तयाचा। अगोचरू यानी अगोचरू, गोचर यानी व्यक्त, जिसका महिमा आप दिखा नहीं सकते, व्यक्त नहीं कर सकते, देख नहीं पाते, अदृश्य स्वरूप में होता है, अज्ञात स्वरूप में होता है, ब्रह्म के जैसा होता है। यानी आपने ज्ञानेंद्रियों से ग्रहण करने के परे ऐसा होता है। और ये उनकी जो योजनाएं होती है वो बहुत अलग होती है, हमें पता नहीं चलता कौन से किसके हाथ से क्या करवा लेना है, ये उनको पता होता है। एक विषय की थोड़ी सी दुरुस्त होगी, 2 मिनट के लिए मैं मेरी निजी आयुष्य कर लेता हूं। 3 दिन पहले 24 तारीख को, 24 नवंबर को मुझे बुलावा आया शिरडी से। आपको वो सराला बेट में हमारा जो इनॉग्रेशन होने वाला है साई आश्रम का, उसमें आपको आना है और आपको ये जिम्मेवारी है। ठीक है, मैं करता हूं, आपको आना है बस। ठीक है। काकी बोली, माय मिसेस, मेरी इच्छा हो रही है आने की, मुझे आना है। बोले चलो, कोई प्री प्लान नहीं, कोई प्री प्लान नहीं। 25 तारीख को हम रात को निकले, वहां गए। रात को वहां सराला बेट जो गंगागिरी महाराज ने स्थापित किया हुआ, जिनकी साई बाबा की पहचान
पूरे विश्व को सबसे पहले बताने वाले गंगागिरी महाराज, उनको उन्होंने स्थापित किया। बहुत ही लुभावना सृष्टि सौंदर्य से भरपूर ऐसा वो स्थान है। चारों तरफ आइलैंड है, गोदावरी के रिवर में आइलैंड है। वहां जाके बेटा बहुत प्रसन्न लगा, बहुत पॉजिटिव वाइब्रेशन। दूसरे दिन सवेरे वहां के जो मठाधिपति है और बाकी के जो आयोजन कमेटी के लोग हैं, मैं और काकी बैठे थे सवेरे। तो प्रोग्राम तो 12 बजे होने वाला था, महज एक 8 बजे होते। हम एकदम शुद्ध स्नान वगैरह सब करके बैठे थे। उन्होंने बुलाया, काका काकी आप इमीडिएटली इधर आ जाओ। आ जाओ, मुझे लगा नाश्ते के लिए बुलाया होगा तो इसलिए हम गए। बोले आपके हाथ से साईं बाबा की प्रतिष्ठापना होने वाली है, आप दोनों तैयार हो जाइए और अभिषेक। और ये मैं अभी आपको साई सत्संग 1 और 2 में वो उसका वीडियो डालूंगा। उसके बाद अभी 10:30 बजे जब खत्म हो जाएगा, 10 साढ़े 10 बजे तो प्रतिष्ठापना होने वाली है। अरे फूलों नो समय, बाबा की सराला बेट पे मूर्ति की प्रतिष्ठापना हमारे दोनों के हाथ से हुई। ध्यान में नहीं, मन में नहीं, कुछ भी नहीं, बाबा करवा के लेना चाहते थे। आंख से आंसू टपक रहे थे। महाराज क्या तुम्हारी ये लीला है, हमें पता भी नहीं। क्योंकि वो ब्राह्मण जो प्रीचर थे, वो आचार्य थे, उन्होंने बोला एक जोड़ी की जरूरत है और उस वक्त सवेरे 8 बजे हम दोनों आ जाओ। ये बाबा अपने नियत गुरु कौन से किसके हाथ से क्या करवाना है करवा लेते हैं। मैं आपको उसके वीडियोस और फोटो डालूंगा अभी साई सत्संग और सत्संग में, आप देख लेना। क्या चाहिए, क्या चाहिए इसके आगे। बाबा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठापना मुझे जैसे एक शेफर्ड के हाथ से, एक अज्ञानी आदमी के हाथ से करवा के लेना, जिसकी क्षमता नहीं है, कैपेसिटी नहीं है, उससे करवा लेना है। कौन तय करता है? नियत गुरु। ओम साई राम। या द्वितीय कोटि तिल साई, तयाचे चरित्र वर्णुमी काय, जैसी तो बुद्धी मद देई, मद बुद्धी देई, तैसीची होई लेखन है। लौकिकी विद्याचे अनेक गुरु, स्वरूपी स्थापी तोची सद्गुरु, समर्थ तोची जो दावी भोपारो, महिमा अगोचरो तयाचा। लौकिक ज्ञान जो भौतिक ज्ञान है, लौकिक यानी भौतिक, मटेरियलिस्टिक वर्ड, या अपने सृष्टि शब्द सृष्टि का सही स्वरूप जानने वाले जो देने वाले गुरु है, वो अलग है। लेकिन हमारे स्वरूप, स्वस्वरूप, यानी हमारा जो प्योर इटर्नल सोल है और ये जो परमात्मा है, उनकी कनेक्टिविटी, उनकी जो अनुसंधान, उनका कनेक्शन जो स्थापित करते हैं, वो समर्थ सद्गुरु होते हैं। इस अंतरात्मा का परमात्मा से जो मिलन करने वाले कौन होते हैं? वो होते हैं समर्थ सद्गुरु, नियत गुरु। और यही सद्गुरु हमारी ये भवसागर की नौका अपनी पैर तीर के उस पार ले जाने में सक्षम होते हैं, समर्थ होते हैं। ये सद्गुरु का महिमा अपने ज्ञानेंद्रिय के कंट्रोल में, इसमें एरिया में नहीं आ सकता। जैसे अभी हुआ, जैसे मैं बताया, क्या कभी सोचा था? नहीं। तो ये ज्ञानेंद्रिय जो है उसके कक्षा के परे है। ये सब ये अपने हाथ से अपने नियत गुरु करवा लेते हैं। There are number of teachers or preachers for different subjects of life, but one who establishes our relations, our connections with the absolute self is real Sadguru, Samartha Sadguru, true preacher. He only can make us cross the ocean of this worldly life. His greatness is beyond the capacity of our senses of knowledge. देख लीजिए, अपना सेंस, अपने जो पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, उनके परे ये नॉलेज है, हम नहीं बोल सकते। अब मुझे पता चला कि काकी को मुझे क्यों साथ में लाना, उसकी इच्छा क्यों हुई, उसके बाद वहां जाके पता चला। 72 ब्रह्म भावे भूत मात्र, अवलोकी जो सर्वत्र, देखे समसाम्य अरिमित्र, वेद तिळमित्र नेने दो, तिळमात्र नेने दो। अरि यानी शत्रु, एनिमी। सभी भूत मात्र में, प्राणी मात्र में, प्राणी जातों में
ये ब्रह्म ही बसा हुआ है, ये सब भूत मात्र प्राणी जाति ब्रह्म के ही स्वरूप है। ऐसी समान वृत्ति से प्रकृति के अंदर जो दृश्य जात है, जो चर अचर है, ये सब साई भगवंत ही है, परमेश्वर ही है, ये सब जड़ जीव एक ही है। ऐसे साई भगवान देखते हैं। शत्रु और मित्र इसमें जरा भी जो भेदभाव नहीं करते हैं, वही साई भगवान है। इसीलिए तो साई समर्थ सदगुरु है। All creatures are form of absolute truth Brahma. With this view, Sai Bhagwan used to look the animates and inanimates. He never differentiated between friends and foe, enemies and mitra में friends. निरपेक्ष आणि समदर्शी स्टॅन्झा 73 चॅप्टर 10. निरपेक्ष आणि समदर्शी अपकार्या ही अमृतवर्षी समचित्त उत्कर्ष अपकर्षी विकल्पना स्पर्शी तयाते. बहुत अच्छी मूवी है, आप जरा समझ लीजिए इसको. निरपेक्ष आणि समदर्शी अपकार्या ही अमृतवर्षी समचित्त उत्कर्ष अपकर्षी विकल्पना स्पर्शी जयाते. अव्यापकार हानि पहुंचाने वाला, हमें क्षति पहुंचाने वाला, हमें हार्म पहुंचाने वाला. उत्कर्ष एंड अपकर्ष, उत्कर्षाने प्रगति, अपना अपलिफ्टमेंट, अपना प्रोग्रेस, ग्रोथ. अपकर्ष डाउनफॉल, अपनी क्षय होते जाना, अवनति होना. विकल्प यानी तरह तरह के शंका आशंकाएं, भ्रम, भेद, मतभेद, गलतियां, and differentiation of all these things. Avivek, you can say mental अविवेक यानी कुछ विवेक अपना जागरूक न रहते हुए कुछ भी बात ये करना, बिहेव करना. अभी सर्वभूतों में समान वृत्ति से देखने वाले, सबको एक ही नजरिया से देखने वाले साईं भगवंत, जो उनको तकलीफ देते हैं, जो उनको अपकार करते हैं, उनके ऊपर भी अमृत का वर्षाव करते हैं, उनको भी ब्रह्म ज्ञान देते हैं, उनको भी अमृत ज्ञान देते हैं. जो आपके उत्कर्ष में और आपके अपकर्ष में, यानी आपके उद्धार काल में, आपके ग्रोथ काल में और आपके डाउनफॉल में भी, और उनके खुद के भी, वो कभी ढलते नहीं है, स्थिर एक जगह स्थिर रहते हैं. जिनको अविवेक, अविवेक यानी सारासार विवेक बुद्धि का अविवेक बुद्धि, आप पर भाव, ये अविवेक है. इनको जरा भी कभी छूता भी नहीं है अविवेक. ऐसे साई समर्थ प्रभु है. Observing all things in one form, he used to bless even the harmful person who is not disturbed in progress or downfall, who has no doubts, who has no indiscretion. Such godly person is Lord Sainath. वर्तता या नश्वर देही, देह गेही जो गुंतला नाही, दिसाया ते देही अंतरी विदेही, तो येची देही निर्मुक्त. वर्तता या नश्वर देही, देह गेही जो गुंतला नाही. देह यानी शरीर, गेह यानी घर गृहस्थी. जो ये नाशिवंत देह में प्रकट हुए हैं, अवतीर्ण हुए हैं, उन्हें देह की धारणा की है, लेकिन प्रापंचिक बंधनों में कभी वो अटके नहीं है, वो मर्यादाओं बंधनों में वो फंसे नहीं है. ऊपर ऊपर से वो देहधारी नजर है. साईं बाबा ने, आज भी बहुत सारे लोग थे, अभी मेरे ख्याल से खत्म हो गए, जिन्होंने बाबा को देखा था, 2-2 साल तक पहले थे, लेकिन अंतरंग में देहातीत स्थिति है. वो देह के परे, वो उनकी कनेक्टिविटी हमेशा भगवान से लगी रहती, यानी देह में होकर भी वो परब्रह्म से कनेक्टिविटी रहती है उनकी. ब्रह्मात्मिक स्थिति, ब्रह्म के साथ एकात्म, ऑलवेज कनेक्टेड टू द ब्रह्मा, ऐसी स्थिति प्राप्त होने ले साई भगवान
देह में रहकर भी मुक्तावस्था में रहने वाले समर्थ सदगुरु संत साई बनाथ भगवान है। He never got involved in limitations of family life, although he became in destructive form as human being. Outwardly, he was like common man, but inwardly he was formless, one with truth and always liberated. धन्य शिर्डीचे जन, साईचे जयांचे जेव देवतार्चन, करिता अशन भोजन शयन, अखंड चिंतन साईचे। शिरडी जनों का भाग देखो, वो कितने धन्य है, भाग के बड़े भाग के है कि जिनको प्रत्यक्ष साई भगवंत की उनकी वास्तु देवता है, इष्ट देवता है, ग्राम देवता है, कुल देवता है, और अपने भजन पूजन अर्चन वो करने में साई भगवान उनको मिले, तो उनकी बड़े महाभाग्य है शिरजन। शिरडी वासी यानी साईचीच शिरडी वासी जो लोग हैं, उन्होंने अखंड अनस्टॉपेबली साई का ही ध्यान किया है, साई का ही भजन किया है, साई का ही चिंतन किया है और साई की भक्ति की है। बहुत अच्छी बात है ये, इसलिए तो बाबा शिरडी में बसे, है ना। The people of Shirdi were lucky enough who could worship Sai Bhagwan in various forms of as a village deity, family deity, deity of structure, etc. The residents of Shirdi had contemplated through thought over Sai continuously. धन्य धैन्य तयांची प्रेमळता, खळ्यात परसता कामे करिता, दलिता कांडिता डेरे घुसळिता, महिमा गातात बाबांचा। शिरडीकर जो है, जो भक्तगण है, अपना हमेशा का जो डेली रूटीन काम करते हुए, यानी वो जो आटा पीसते हुए, गंडनी करते हुए, दूध दही ताक वगैरह निकालने के वक्त, अपने खेतों में बाड़ी में काम करते हुए, अपने घर में काम करते हुए बाबा की ही गुणगान गाते हैं, बाबा के बारे में ही सोचते हैं, बाबा का ही नाम लेते रहते हैं। While performing their daily routines of grinding, churning curd, working in farms, the residents of Shirdi used to sing the glory of Sai Baba. आसनी भोजनी शयनी, बाबांच्या नावाची अक्षय स्मरणी, एका बाबाविना दुजा कोणी, देवजानी ना आठविला। भोजन करते वक्त, सोते वक्त, बैठे 4 जन सत्संग करते वक्त शांत चित्त से बैठे हुए शिरडी कर हमेशा बाबा का ही नाम लेते रहते थे और रहते हैं आज भी। बाबा के सिवाय उनको और कोई भगवान नहीं है और उन्होंने आज तक उस किसी की पूजा भी नहीं की है, वो बाबा को ही मानते हैं। तो इसीलिए तो बाबा वहां बैठे, जहां भक्ति भाव है वहां बाबा की बस्ती है। While taking food, while sleeping, sitting leisurely, or if they are when they are with people, the residents of Shirdi were talking only about Baba. They had never thought of worshipping any other god except Baba. काय त्या बायांचा प्रेमातरी, काय तयांचे प्रेमाची माधुरी, निर्मळ प्रेमची कवन करी, विद्वत्ता न करी कवनास। शिरडी निवासी जो साई भक्त है, श्री भक्त है खासकर, उनकी तो महती, प्रेम की महती में क्या वर्णन करूं। उनके जो प्योर प्रेम भाव से बाबा के बारे में, इवन चक्की चलाते हुए, काम करते हुए, बर्तन मांजते हुए बाबा की ही गुणगान वो गाते थे, बाबा के ऊपर रचनाएं करते थे। और उसके जैसे भलरी है, जब पीसते हैं ना उसको, वो भी बोलते जात्याच्या, वो है वो अभंग, लोकगीत, लोक वांग्मय में बहुत सारी रचनाएं इन्होंने की हुई है, उनके हाथ से होती थी। और साई भगवान के स्तुति के ऊपर, साई भगवान के ग्लोरी के ऊपर वो हमेशा गीत गाते थे। वहां एक वो झिपरी और माळी थे, माझा शाई बाबा बोलायचे, साई बाबा नहीं, शाई, शाई यानी इंक लेकिन वो
बोलती थी, वह जंगल जंगल फूल जंगल से फूल लेके आती थी, वो करती थी। सब लोग उनके बारे में तरह-तरह के लिटरेचर फॉर्म, यानी स्पेशली पोएटिक फॉर्म में रचनाएँ करते थे, पोएम करते थे और बारे में गाते थे। उनको कोई पांडित्य नहीं था, उनके पास कोई विद्वत्ता नहीं थी। यहाँ क्या होता है भक्ति में, ये गीत रचने के लिए कोई आपकी इंटेलेक्चुअल काम नहीं आता है, भक्ति काम आती है, वहाँ से वो शब्द निकलते हैं। बाबा का गुणगान, बाबा का वर्णन, बाबा की स्तुति करने के लिए आपको महज़ इंटेलेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है। इंटेलेक्ट तो फेल है, अंदर से भाव जागृत होने चाहिए। अंदर से भाव जागृत होने चाहिए। बस महज़ एक सादा अनपढ़ आदमी, वो भी अगर उसके पास भक्ति है, तो वो बहुत अच्छी-अच्छी रचनाएँ कर जाता है। बीच में एक मराठी में पिक्चर आया था, एक फ़िल्म आई थी संत तुकाराम महाराज के ऊपर। उन पर उनमें तुकाराम महाराज के जो भक्त हैं ढासू महाराज, उन्होंने बस महज़ एक 5-7 वर्ड में, कितने 7 वर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा तुकाराम महाराज का चरित्र चित्रण किया है। और इतना मुझे भाता है वो कि इतने सादे शब्द हैं। मैं उसका ट्रांसलेशन बताता हूँ आपको। जगण्याचा पाया, चालण्याचे बळ, 4 वर्ड हो गए। आयुष्याची कळ, 6 वर्ड हो गए। तुकाराम, 7 वर्ड में पूरा चरित्र खड़ा किया है दासू महाराज ने, जगत गुरु तुकाराम महाराज का। चलण्याचा पाया, क्या अपना जीवन कैसा, जीवनाचा पाया, जीवना वो जो काय जगण्याचा, अपन जो जीवन जीते हैं, उसका जो बेसिक तत्व ज्ञान है, बेसिक डायरेक्टिव्स है, यानी संत तुकाराम महाराज की विचारधारा है। और ये जीवन जीते चलने से बड़, ये जीवन जीते वक्त जो भोग भोगते वक्त ये बल हमें सामर्थ्य प्राप्त करवाता है, सामर्थ्य देता है, वो कौन है? संत तुकाराम महाराज की तुकाराम गाथा है। और आगे का बहुत अच्छा, आयुष्याची कळ, जीवन जीने का सही वर्म क्या है? व्हाट इज द एम एंड ऑब्जेक्ट ऑफ आवर लाइफ? वर्म, कळ यानी सीक्रेट की, ये वो ट्रिजर है ना। आयुष्य जीवन क्या है, जिंदगी लगा जीवन, जीवन क्या है, क्यों जीना है, उसका सही मतितार्थ, सही इप्सित अर्थ, सही मानो में उसका अर्थ कौन देते हैं? तुकाराम। 7 वर्ड है, 7 वर्ड है। तो यहाँ क्या बोला है? शिरडी वासी उसके जो बहुत बड़े पांडित्यपूर्ण वगैरह सब गीत नहीं गाते थे, वो तो सहज भाव से उनमें जो स्फूर्ति होती थी उनको, उस स्फूर्ति से वो बाबा के गीत गाते थे। ये प्रेम भाव काम आता है, प्रेम भाव। अभी भी आप साई सच्चिद पढ़ रहे हैं, साई सच्चिद महज एक विद्वान के रूप से मत देखिए, साई सच्चिद प्रेम भक्ति से देखिए, भाव भक्ति से देखिए, आपको बहुत अलग ही उसका लहजा मिलेगा। आपके अजीब अभी अब का मिलेगा उसमें, अलग से आएगी उसकी। How can I explain the greatness? How can I explain the greatness of residents of Shirdi who used to compose songs of devotion of Baba due to their mutual love and affection? They used to compose various types of local songs. To compose like this in the name of God, one does not need intelligence. Only their ardent love towards Baba, that works for this, that love, उसकी वजह से ये काव्य की निर्मिति होती है। साधी सरळ भाषा खरी, विद्या नाही तिळभरी, त्यातून जे कवित्व चमक मारी, मान चतुरी डोलावी जे। वो मतलब तो रूरल डायलेक्ट जिसमें होता है, ऐसे जिसमें कोई इंटेलिजेंट क्या है, वो जो ग्रामेटिकल
कि जो नियम वगैरह वो सब देखिए, उसकी कोई जरूरत नहीं थी उनकी। एक एक फ्लॉलेस जो भाषा है, एकदम सीधी सादी, उसमें इंटेलेक्चुअल पांडित्य, बहुत हाई लेवल के एजुकेशन वगैरह के उनको चले, वो जो शब्द से भरे हुए बहुत सारे जो होते हैं जिसका अर्थ वो समझता नहीं है, ऐसा नहीं, सादे सरल शब्दों में जिनकी रचनाएं होती है, वो प्रेम भाव से आने की वजह से उनका प्रेम भाव वो वाक्य से क्या होता है, व्यक्त होता है। ये सब देख के भले भले बड़े बड़े विज्ञान मतलब विद्वान, बड़े बड़े पंडित, बड़े बड़े शास्त्री जी अमेजिंग देख रहे थे, ये कैसे हो सकता है, कैसे होता है। रूरल जिनको ज्ञान कम है, कैसी कविता लिखनी है, कैसी पोएटिक फॉर्म में उसको बांधना है, इसका जरा भी ज्ञान न रहने वाले लोग भी अच्छी अच्छी बाबा के ऊपर क्या करते थे, रचनाएं लिखते थे और व्यक्त करते थे। The language of villagers was simple and fluent. There were no intellectual words. There were no intellectual words, but the love and affection explained in these verses were unparalleled and appreciated by knowledgeable person also, intellectual person also. खऱ्या प्रेमाचे आविर्भवन, तया नाव खरे कवन, ते या बायांच्या वाणीमधून श्रोती पाहून घ्यावे की। आविर्भवन यानी व्यक्त होने वाले, एक्सप्रेशन, सेल्फ एक्सप्रेशन, प्रकट स्वरूप उसका, व्यक्त स्वरूप जो बोलते हैं। जहां सच्चा भक्ति भाव होता है ना, वहां मुंह से ऑटोमेटिकली वो वर्ड निकलना शुरू हो जाता है, और उसीलिए उसको ही भक्ति रचना पर गीत बोलते हैं, उसको ही मराठी में कवन बोलते हैं, रचना बोलते हैं, कविता। ऐसी ही रचनाएं शिरडी के श्री भक्तों द्वारा उनके गीतों में से जो भाव व्यक्त होते थे, वो जो श्रोतोजन ने सुने हैं, वो आपने अनुभव लेना चाहिए। या इस बारे में आप साई लीला अगर 1923 से अब तक देखेंगे, तो उसमें बहुत सारी रचनाएं आपको भजन, लावनी, भारूड, ओविया ऐसे प्रकार है, आप देख लीजिए। इवन ये रघुनाथ सावित्री भजन माला जो है, रघुनाथ तेंदुलकर, सावित्रीबाई तेंदुलकर जिनका जिक्र साई सच्चरित में है, उन्होंने भी वो लिखा थे, लिखे कुछ गीत लिखे थे, बहुत सादे सरल शब्द में लिखे हुए हैं, आप जरूर पढ़िएगा। साई बाबा संस्थान के ओल्ड पब्लिकेशन में वो एक है, ऐसे बहुत सारा लिटरेचर अवेलेबल है। If Baba desires and blesses, the devotional songs of Sai devotees will be compiled. It will be definitely printed to hear the sing of these songs. Where immense love is expressed in the song, it is called devotional song. The listener should experience it from the songs composed by ladies of Shirdi. अशेल साई बाबांची इच्छा, पूर्ण संग्रह लादेल त्यांचा, पुरेल श्रोतियांची श्रवणेच्छा, अध्याय कवनाचा होईल। अब बाबा की इच्छा होगी और उनका ब्लेसिंग्स होगा, तो ऐसे साई भक्ति से भरा हुआ जो पोएम्स है, लिटरेचर है, उसका एक कलेक्टिव फॉर्म में, एक बुक फॉर्म में वो प्रसिद्ध भी हो सकता है। ऐसी डिजायर उस वक्त हेमाड़ पंत जी ने की, उसके बाद वो पब्लिश बहुत बार हुआ है। तो श्रोतागण को अगर वो सुनने की और गाने की इच्छा हो गई, तो ये वो रेफर कर सकते हैं। और साई लीला में तब से अब तक आया हुआ है, वो एक्चुअली प्रयास होना चाहिए कि लास्ट 100 साल में जिन्होंने जो जो लिखा है उसमें कुछ सिलेक्टिव कविता लिखी। बाबा की इच्छा है, अगर उनके आशीर्वाद मिले तो साई स्तवन प्रद गीत का एक संग्रह होना बहुत जरूरी है, वो डेफिनेटली पब्लिश होगा, ऐसा हेमाड़ पंत ने खुद अपनी इच्छा व्यक्त की है। If Baba desires and blesses, the devotional songs of Sai devotees will be compiled. It will be definitely printed to hear and sing these songs. असो निराकार भक्ति कृपे, शिर्डीत भक्त रूपे प्रकटले साई रूपे,
देह अहंकार विकार रूपे भक्ति स्वरूपे ओळखीजे। खैर रहने दीजिए, विल टेक द ओरिजिनल दिस वन। विषयांतर हो गया था। भक्तों के ऊपर कृपा करने के लिए साई भगवान खुद साई रूप में निर्गुण निराकार से सगुण साकार के रूप में साई भगवंत के स्वरूप में शिरडी में प्रकट हुए हैं। उनका अवतार कार्य वहां से स्टार्ट हो गया है। ये उनका इनकारनेशन है। अपने अंदर के सब विकारों का नाश करने के लिए, देह का अभिमान खत्म करने के लिए, और सिर्फ प्योर भक्ति भाव से, वनली भक्ति भाव से उनको पहचाना जा सकता है। टेक्निकल और वाद विवाद और लॉजिकल प्लेटफॉर्म पर बाबा मिल नहीं सकते। मिलना मुश्किल नहीं मिल सकते। कोई अन्य आदमियों को नहीं मिलने वाला है जो लॉजिकली, साइंटिफिकली, क्रोनोलॉजिकली, वो जो कुछ ये क्या बोलते हैं, कुछ अर्थमेटिक कैलकुलेशन के हिसाब से या इसके जोड़ेंगे, नहीं मिलेगी आपको। ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी ऐसा कभी नहीं होगा। वो तो अपने भक्ति भाव से अपने आपको साई को पहचानना है। यही बाबा को ज्ञात अवगत कराने की, बाबा का सही स्वरूप समझ लेने का एकमेव मार्ग क्या है? भक्ति भाव, प्रेम भाव, है ना। यही है बाबा का आज का स्वरूप। यही है बाबा का सही स्वरूप जानने की प्रोसेस, प्रक्रिया। एक आज लेते हैं हम, अथवा भक्तांचे पुण्य फळले, जिते प्राप्त काल वसत मेळे, साई कृपे पूर्ण अंकुरले, फळा आले शिरडीत। वो भक्त का पूर्व संचित होगा, कुछ पुण्याई किए होंगे, कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, तो इसीलिए वही फल स्वरूप आज बाबा शिरडी में प्रकट हुए हैं। और वो पुण्याई, जो पुण्य कर्म, जो अच्छे काम उन्होंने किए होंगे, गुड डीड्स किए हैं, वो मैच्योर हो गए हैं। और वो मैच्योर का फल स्वरूप आज हमें साई बाबा की प्राप्ति शिरडी में हुई है। ये बाबा का क्या है? हमारे खातर, हमारे उद्धार के लिए, हमारी कुछ अच्छा कुछ काम किया होगा पुराने अनंत जन्मों में या इसी जन्म में, गए अनंत जन्म में, इसीलिए तो भगवान खुद सदगुरु के रूप में आज हमें प्राप्त हुए हैं। ये हमारा परम भाग्य है शिरडी में। आज यहाँ हम खत्म करते हैं। किसी को कुछ अगर ये जरा थोड़ा सा डिफिकल्ट, समझने में डिफिकल्ट, लेकिन समझ लेने के बाद कुछ डिफिकल्ट नहीं, ऐसा अध्याय है। इसमें और भी आगे बहुत सारा फिलोसॉफी जताई हुई है। एक एक ओवी के ऊपर बहुत सारा एक्सप्रेशन देना पड़ता है। तो शायद ही कल ये खत्म होगा, लेकिन हमें खत्म करने की जल्दी नहीं है, हमको समझ लेने की जल्दी है। हमें साई सच्चित खत्म हो इसके लिए नहीं बैठा हूं यहाँ, मुझे समझाना है। ये भगवान का ज्ञान है, ये साई बाबा का अमोघ ज्ञान है, ये हमें समझ लेना है। जल्दीबाजी करके साई सच्चरित नहीं, साई सच्चित का ज्ञान नहीं प्राप्त किया जा सकता। ओम साई राम। प्लीज टेक ओवर, नागराज प्लीज टेक ओवर। यस काका, ओम साई राम। किसी के कुछ, ओम साई राम, किसी के कुछ क्वेश्चन है तो पूछ लीजिए, 2 मिनट में, नहीं होगा तो वी शैल कंक्लूड एंड आई शैल give those photographs in Sai Satsang 1 and 2 में what happened with me since last 2 days, with us rather. Virendra ji, we need your blessings. Please have 2 words on it. Actually, I am very anxious to see those photographs. I'll just give you, sir. I'll just give you. Yeah. Rather, I will. You please continue. I will just do it right now.
Where is this place? This place This is where? Sarada Valley is 35 kilometer from Shirdi, 24 kilometer from Sri Rampur, and from few kilometers from Changdev Maharaj, Puntamba. It's near Puntamba. Few kilometers, 5 to 6 kilometer maximum. Okay. How can I join the Sai Satsang group? I am excited to see the photos as well. Ask Nagaraj. He will add you. Just get in touch with Nagaraj. I will send the link for this satsang group. Okay, and they can join. I'll just give that those all photographs of yesterday, plus some videos also, and see the amazing thing. I don't know, beyond my imagination. बाबा इतने मेरे लाड़ प्यार करते हैं, मेरे क्षमता के बाहर, मेरे इसके ऊपर का ये सब है भाई. I don't know. एक गेले होता ना तुला फोटो पाठवतो. ते गेले होते की सारस बाग काय ती. चलो भेजता हूँ, बाद में और देख लेना. बाद में मैं भेज रहा हूँ. साई सत्संग ग्रुप. Oh, cannot share more than 30. Okay. ठीक है, हम कुछ कम करते हैं. नीचे से देखते हैं. It was amazing things, amazing. I'm just sending right now Sai Satsang and Sai Satsang 2. ले लीजिए. I posted and I'm again posting because I'm not able to post more than 30. It was really amazing thing. Anybody has got any question? A chat. There are 3 chats. Okay. Now this from Suchita to everyone. How can I join? That I already told. You can message me on this. Okay, you got it. Then what else? File 2 only, right? 3 messages. Okay, I got it. Anybody has got any question, please? So shall we conclude, Nagaraj? Yes, Kaka, we can conclude. Okay. So Virendraji, with your blessings, we are concluding today. Again, we'll meet tomorrow. Thank you. Yes.